Hello everyone. Here I am with the third part of the chapter Reproduction in Plants. So let's start. These are some topics that we will discuss in this video. First is vegetative propagation. First, remember that in last video we have discussed about the other parts of the asexual reproduction that were fragmentation, spore formation, budding. So today this is the last part of the video, last part of the asexual reproduction, that is vegetative propagation. Vegetative propagation is also known as vegetative reproduction. This vegetative propagation is divided into two parts. First is natural method of vegetative propagation and second is artificial method of vegetative propagation. So in this video we will cover natural method of vegetative propagation. In this method, any plant, some plants reproduce by stem, some by roots and some by leaves, or we can say this method is divided into three types. So by stem there are some other parts, means different types of plants have different types of stems that are known with different names like tuber, bulb, rhizome, corms, runner. So today we will discuss about these five and these two also, and also we get to know which type of plants have tuber, bulbs, rhizome, corms or runners. So we will start with by stem. First we will see what is vegetative propagation. Vegetative propagation या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है. ओके, सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वी हैव डिस्कस्ड इन फ्लो चार्ट एंड लास्ट वीडियो ऑल्सो. सो दिस इज द पार्ट ऑफ asexual reproduction in which new plants produces from vegetative parts like roots, stem and leaves. Actually first you should know what is the means of vegetative. Vegetative parts होते हैं plants के, growing plants जिनसे plants की growth बढ़ती है वही vegetative parts कहलाते हैं plants के. ठीक है, जिनमें roots होती हैं, stem होता है और leaves. कोई भी पौधा आपने देखा होगा तो उसमें नई नई लीव्स निकलती हैं, उसका स्टेम बढ़ता रहता है, उसमें ब्रांचेस निकलती हैं और इन द सॉइल, अंडर द सॉइल जो होते हैं रूट्स भी ग्रो करती रहती हैं डाउनवर्ड्स. ओके, सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड व्हेन दीज पार्ट्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन देन इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. Some other characteristics of the vegetative propagation are it has two subtypes. What? Natural and artificial method. So in this video we will discuss about the natural method only. First is by stem in natural method. So there are some plants, there are different types of stem that are known as different names. So what is tuber? Tuber क्या है? ठीक है, तो पोटैटो इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूबर. पोटैटो जो होता है इसको ट्यूबर भी बोलते हैं और ये पोटैटो इसी ट्यूबर से या फिर ये जो पोटैटो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम में, इसी से ये रिप्रोड्यूस करता है. ठीक है, और पोटैटो तो हम जानते ही हैं पहले से कि दिस इज द स्टेम. पोटैटो क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम होता है. ठीक है, आप ये मत सोचिए कि अंडरग्राउंड है, अंडर द सॉइल है तो ये रूट ही होगा. ठीक है, there are some stems that are found under the soil. So potato is swollen underground stem modified to store food. जो आप इसको देखते हैं ना, इसका शेप ऐसा हो जाता है गोल राउंड शेप में या फिर ऐसे स्वेलन क्यों होता है? क्योंकि इसने फूड स्टोर किया हुआ है. ठीक है,
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज पोटैटो ट्यूबर हैज बर्ड्स ऑफ आईज, ठीक है। बर्ड्स होती हैं जो छोटी छोटी आउट ग्रोथ निकलती हैं, ठीक है, लेकिन आईज क्या होती है, मेनी टाइम्स यू हैव सीन ऑन द पोटैटो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस इज नोन एज आई, और इसी आई में से बर्ड निकलती है, ये जो बर्ड है, ठीक है, बहुत सारी बर्ड्स इसमें आप देख रहे हैं, ये है, ये जो आउट ग्रोथ देख रहे हैं यही इसकी बर्ड है, और ये इस तरह के स्ट्रक्चर में से ये बर्ड जो है डेवलप होती है, ठीक है, और इसी बर्ड से आपका न्यू प्लांट बनता है। कैसे? इफ अ कट पोटैटो विद अ आई ऑन इट इज प्लांटेड अंडर द सॉइल इट ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट, ठीक है। जब इस पोटैटो को इस तरह से इसको कट किया जाता है कि इसका जो एक पार्ट है उसमें कोई भी एक छोटे से पीस में एक आई जरूर होना चाहिए, ठीक है, और जब इस आई वाले पार्ट को या इस आई वाले पार्ट में जो आउटग्रोथ हो गया है इसको जब सॉइल में अंडरग्राउंड इसको प्लांट कर देते हैं, ठीक है, तो ये जो इसमें से बर्ड निकल रही है ये एक पूरा प्लांट बन जाता है, एक न्यू प्लांट में पूरा ग्रो कर जाता है, ठीक है। सो इन दिस वी हैव सीन अबाउट द स्टेम ट्यूबर. Now we will discuss about the next type. Next type is stem bulb. Stem bulb यानी कि किसी पौधे में जो स्टेम होती है वो बल्ब के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। सो बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड स्टेम शुड बी swollen, ठीक है, एंड bulb in the shape it will looks like a bulb. So here you can see this is a onion and its shape is also like a bulb, that's why it is known as bulb, stem bulb. और यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टेम है, जो ये बल्ब है या अनियन है, ये क्या है, आपका अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके। ये अंडरग्राउंड स्टेम है जो आप देख रहे हैं, इसका डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर। अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अनियन, लिली एंड टुलिप आर कॉल्ड बल्ब्स, ठीक है। यहाँ पर जो अनियन है आपका एक वेजिटेबल है, और लिली और टुलिप यू नो दीज आर द फ्लावर्स, लेकिन जो इनका स्टेम होता है वो भी अंडरग्राउंड स्टेम होता है और बल्ब के शेप में होता है, ठीक है। तो ये वाले प्लांट्स यानी लिली, टुलिप और अनियन ये इसी बल्ब से ही रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी बल्ब से एक नया प्लांट आपका ग्रो करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज बल्ब्स आर थिक शॉर्ट अंडरग्राउंड स्टेम विच कंटेन रिजर्व फूड। यहाँ पर भी वही बात है कि why they are swollen, why they are in the shape of bulb, because they have stored food. इन्होंने यहाँ पर फूड स्टोर कर लिया है जिसकी वजह से ये स्वेलो कर गए हैं, और रिजर्व फूड का भी मतलब वही, यहाँ पे इन्होंने फूड को रिजर्व कर लिया है, स्टोर कर लिया, ओके, दैट्स वाई दे आर swollen. These bulbs have buds on their bodies, ठीक है, बर्ड्स होती हैं, इसमें भी छोटी छोटी आउटग्रोथ हो जाती हैं इनकी बॉडी पे, जिससे कि एक न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक। तो यहाँ पर जो आप ये वाला डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर है, इसमें क्या है कि न्यू प्लांट्स जो ग्रो कर चुके हैं वो हैं आप, ठीक है, इनकी भी एक वेजिटेबल है ये, दे आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल, मेनी टाइम्स यू हैव सीन एट योर होम. सो onion grows, reproduces by bulb. Let's see what is next. Rhizome. Rhizome is also a type of stem. Okay, ये भी मैंने क्या कहा था, अलग अलग प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं अलग अलग नेम से जाने जाते हैं. तो ये जो स्टेम है ये भी राइजोम जो है ये भी एक स्टेम है. तो ये किस में होता है, ठीक है. लेट्स सी. अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ जिंजर एंड टर्मरिक आर कॉल्ड राइजोम. ठीक है, जो राइजोम है ये जिंजर और टर्मरिक की जो स्टेम होते हैं उनको राइजोम बोला जाता है. ठीक है, यहाँ पर दोनों ही चीजें आप यूज करते हैं अपने किचन में. टर्मरिक इज अ व्हाट इज, ये आपका एक मसाले में यूज होता है. ठीक है, हल्दी बोलते हैं. और जिंजर मीन्स अदरक. ठीक है, सो दीज स्टेम्स आर कॉल्ड राइजोम. नेक्स्ट इज rhizome have scaly leaves and buds on their bodies.
राइजोम्स जो होते हैं इनमें स्केली लीव्स होती हैं, ठीक है, स्केल टाइप मीन्स लीव्स होती हैं, उनको स्केली लीव्स बोलते हैं। ये इस तरह की होती हैं और न्यू प्लांट्स जो होता है वो ग्रो करता है इन्हीं बड्स से, ठीक है। यानी कि जो राइजोम होता है इसमें छोटे छोटे बड निकल आती हैं और उसी बड से ये आपका प्लांट ग्रो करता है। बिल्कुल पोटैटो की तरह ही होता है, इसमें जो बड्स निकलती हैं। अब यहाँ पे आप एक डायग्राम में जस्ट ट्राई टू सी, दीज आर सम पीसेज ऑफ जिंजर एंड दे हैव स्मॉल प्लांटलेट्स, ठीक है। ये छोटे छोटे से इसमें प्लांट्स आप देख रहे हैं और जो इनकी लीव्स हैं ये स्केली लीव्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से जो आपका जिंजर होता है उस तरह से ग्रो करता है। ये भी आप जिंजर का ही पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आउटग्रोथ देखिए, इस तरह से आउटग्रोथ निकलती। ये जो बड्स हैं ये वाली, ये हैं आपकी बड्स जो पहले यहाँ पर छोटी थी, फिर इसमें अब जो ग्रीन पार्ट देख रहे हैं यानी कि दे आर ग्रोइंग इनटू न्यू लीव्स। यहाँ पर जब लीव्स बन जाएंगी तो लीव्स क्या करती हैं आपको पता है, फोटोसिंथेसिस करती हैं और फूड बनाने लग जाती हैं, जिसके वजह से जो ये प्लांट है ये प्लांट एक इंडिविजुअल प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा, इसको फूड मिलेगा और ये ग्रो करके एक नया जिंजर बन जाएगा, ओके। एंड राइजोम इज ऑल्सो फाउंड इन बनाना। सो हियर यू कैन सी दिस स्मॉल पार्ट इज नोन एज बड, ठीक है। ये जो है इसका ये बड है जो यहाँ से निकला हुआ है। वैसे आपको पता है कि ये जो आपका बनाना होता है ये भी एक स्टेम है, पूरा होल प्लांट आप देखेंगे ये सब पूरा ही स्टेम है, ओके। और ये इसकी रूट्स हैं। तो ये जो आप देखेंगे ये जो ये वाला पार्ट है यही आपकी स्मॉल बड है, यही राइजोम है, इसी से एक न्यू प्लांट बनाना का ग्रो करता है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। कॉम्स। इन सम प्लांट्स स्टेम इज नोन एज कॉम्स, ठीक है। स्टेम ऑफ प्लांट्स कॉल्ड कॉम्स लाइक कोलोकेशिया एंड ग्लैडियोलस। ये टू टाइप्स के जो प्लांट्स हैं इनका जो स्टेम होता है उसको बोलते हैं कॉम्स, ठीक है। कोलोकेशिया आप जानते हैं इसकी सब्जी बनती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री अरबी, कहीं कहीं इसको अरबी बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो ग्लैडियोलस है, ग्लैडियोलस आपका एक फ्लावरिंग प्लांट है, ओके। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्वेलन कॉम्स इन दीज प्लांट्स, ठीक है। इसमें भी वही जो कॉम्स होते हैं यानी जो स्टेम है वो स्वेलन होते हैं, मीन्स बिकॉज ऑफ स्टोर्ड फूड, ओके। यहाँ पर ये देखिए ये जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं ये है आपका कोलोकेशिया, ठीक है। इस कोलोकेशिया में से आप देख रहे हैं छोटे छोटे से आउटग्रोथ ग्रीन कलर के निकले, मीन्स दे आर स्टार्टिंग डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट, दैट्स व्हाई दे हैव दीज स्मॉल लीव्स, ओके। सो दिस इज अ कोलोकेशिया and this is a gladiolus plant which is not visible properly. Actually it also have leaves, long leaves and flowers, very nice colored flowers होते हैं इसके, ठीक है। सो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट जो आप देख पा रहे हैं यही है आपकी स्मॉल आउटग्रोथ्स दैट आर नोन एज बर्ड्स, और यही बर्ड्स न्यू प्लांट में ग्रो करके एक न्यू प्लांट बनाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज रनर। सो इन सम प्लांट्स स्टेम इज नोन एज रनर्स, और वो कौन से प्लांट्स हैं चलिए देख लेते हैं। साइडवेज एक्सटेंडिंग शूट्स इन ग्रासेस एंड वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज आर कॉल्ड रनर्स। जो कुछ तरह की घास होती हैं उनके जो शूट्स होते हैं, शूट मतलब ये शूट भी स्टेम का पार्ट होता है, ठीक है। तो जो न्यू स्टेम का पार्ट होता है उसको शूट बोलते हैं, जो ग्रोइंग पार्ट होता है, ठीक है। ये स्टेम का क्या होता है, ग्रोइंग पार्ट, अपर पार्ट जो होता है जो ग्रो कर रहा होता है उसको शूट बोलते हैं। यहाँ पर ग्रासेस में और स्ट्रॉबेरीज में देखिए रनर्स पाए जाते हैं, रनर्स। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, ये आपकी एक घास है जो आपने बहुत बार अपने घर के आसपास कहीं ना कहीं देखी होगी, और ये जो
रेनी सीजन में बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं, रोड साइड पे भी दिखती है। तो जो इसके छोटे छोटे पार्ट्स जो ये आप देख रहे हैं ये हैं रनर्स, ठीक है, यही इसके स्टेम है और यहाँ पर होती है इनकी रूट। आपने देखा होगा कि अगर किसी पीस ऑफ लैंड पे अगर ये छोटी सी जगह पे या मतलब कोई एक या दो प्लांट भी हैं तो जैसे ही इनको रेनी सीजन में ये इसलिए ग्रो करते हैं क्योंकि इनको वाटर इजीली मिल रहा होता है, तो ये ग्रो करते जाते हैं और ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये ग्रो करते जब इसका स्टेम थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तो जहां पर भी ये सॉइल को टच करता है उसी जगह पर ये सॉइल से अच्छे से अपने आप को मतलब टच करता है, तो वहां पर थोड़ी सी रूट्स ग्रो कर लेता है और उसके साथ टाइटली जो है अपने आप को स्ट्रांगली वहां पर जोड़ लेता है और वहीं से फिर एक नया प्लांट बन जाता है। अगर आपने दूसरी जगह से उखाड़ भी दिया तो ये अलग अलग जगह पे अपने आप को ज्वाइंट कर लेता है सॉइल के साथ और न्यू प्लांट वहीं से ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। तो ये है आपका ग्रासेस जो रनर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रनर्स हैव बर्ड्स विच ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, इसमें भी छोटे छोटे से आउट ग्रोथ निकलती है, वो आगे ग्रो करके अपनी प्लांट बना लेती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये सॉइल पे जहाँ टच होता है वहीं पर ये रूट्स अपनी ग्रो कर लेता है और वहीं से एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जो डायग्राम ये वाला है दिस इज द डायग्राम ऑफ स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी एज यू कैन सी दिस इज द स्ट्रॉबेरीज। इसमें भी इस ग्रास की तरह ही निकलते हैं, रनर्स होते हैं जो ग्रो करते हैं और जैसे जैसे सॉइल में टच करते हैं वहीं पर एक नया प्लांट बन जाता है क्योंकि वहीं पर अपनी रूट्स को ग्रो कर लेते हैं और सॉइल में अच्छे से ज्वाइंट करके अपने आप को वहां से फूड वगैरह वाटर वगैरह गेन करने लग जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द अबाउट कॉम्स एंड रनर्स। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नाउ वी विल सी बाई रूट्स actually which I have discussed till last slide. This was the about stem. stem में कौन कौन से होते हैं, different types के stems उससे grow करते हैं, ठीक है। Now we will discuss about roots. So roots of certain plants, कुछ निश्चित प्रकार के प्लांट होते हैं जिनमें से जो रूट्स होती हैं वो swollen हो जाती है। क्यों हो जाती है? स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, रूट्स अगर स्वेलो कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि वो फूड स्टोर कर रही हैं, ठीक है। दीज रूट्स हैव बर्ड्स ऑन देम। अब ये रूट्स पे भी छोटी छोटी बर्ड्स निकलती है जो आउट ग्रोथ होती है, पहले छोटी सी दिखती है और फिर बाद में वो उसमें से और ग्रो करते करते एक न्यू प्लांट उसमें से डेवलप हो जाता है। व्हेन दीज स्वेलन बर्ड्स आर प्लांटेड इन द सॉइल दे ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इसी न्यू जो आउट ग्रोथ निकल रही है उसी से उसको जब सॉइल में प्लांट कर देते हैं उसमें से एक नया प्लांट डेवलप करता है, नया ग्रो कर जाता है। ओके, तो एग्जांपल्स ऑफ दीज प्लांट्स, स्वीट पोटैटो, ठीक है। स्वीट पोटैटो को आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? शकरकंद भी बोलते हैं। डहेलिया, दिस इज अ फ्लावर। एस्परेगस, दिस इज द डायग्राम ऑफ एस्परेगस। एस्परेगस इट इज यूज्ड लाइक अ वेजिटेबल। ओके, टैमरिंड, टैमरिंड आपका होता है इमली, ठीक है। और ये जो प्लांट है ये आपका डहेलिया का है। डहेलिया फ्लावर देख सकते हैं आप यहाँ पर, और डहेलिया फ्लावर इज फाउंड इन डिफरेंट कलर्स एंड इट इज बिग इन साइज। ओके, और ये आपका ये क्या है? स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो आपने बहुत बार देखी होंगी, ठीक है। तो दीज प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय रूट्स। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन बाय लीव्स। ओके, सम प्लांट्स रिप्रोड्यूसेस बाय लीव्स। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो लीव से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लीव्स। लीव्स हैव बर्ड्स ऑन द नोचेस एट देयर मार्जिन्स। ओके, जो मार्जिन्स होती है, जैसे यहाँ पर आप देखें ये जो लीफ है इस तरह से बनी हुई है, यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये जो पार्ट होता है, जो ये पार्ट थोड़ा सा आप देख रहे हैं अंदर की तरफ है, दिस पार्ट इज नोन एज नॉच, ठीक है। ये जो पार्ट है और इसी पार्ट से यहाँ से जो है आपका एक आउटग्रोथ निकलेगी, ठीक है। और वो आउटग्रोथ क्या होगी? बर्ड होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको नॉच बोलते हैं, जो ये अंदर की तरफ पार्ट है ये वाला पार्ट जो है इसको नॉच बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है। इसी नॉच वाले पार्ट पे एक बर्ड निकलेगी, आउटग्रोथ निकलेगी, जिसको बर्ड बोलते हैं। और यही बर्ड when these leaves get detached
from the plant and touch moist soil, buds grow into new plants. जैसे ही ये जो लीव्स होती हैं ये प्लांट से डिटैच यानी प्लांट से जब अलग हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं तो ये सॉइल को टच करती है. सॉइल अगर मॉइस्ट होती है तो ये तुरंत वहां पर बर्ड्स जो है एक न्यू प्लांट के रूप में ग्रो कर जाती हैं. ओके, सो एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ब्रायोफिलम एंड बिगोनिया. These are two examples of the reproduction by leaves. So in this video we have discussed about the vegetative propagation, natural method of vegetative propagation. So thanks for watching. We will meet in next video with the artificial methods of vegetative propagation or vegetative reproduction. Till then, be happy. Bye bye.